شام کو شاگرد جھیل کے پاس گئے اور کشتی پر سوار ہو کر جھیل کے پار شہر کفر نحوم کے لیے روانہ ہوئے۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور عیسیٰ اب تک ان کے پاس واپس نہیں آیا تھا۔ تیز ہوا کے باعث جھیل میں لہریں اٹھنے لگیں۔ کشتی کو کھیتے کھیتے شاگرد 4-5 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے کہ اچانک عیسیٰ نظر آیا۔ وہ پانی پر چلتا ہوا کشتی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاگرد دہشت زدہ ہو گئے۔ خوف نہ کرو، میں ہی ہوں۔ وہ اسے کشتی میں بٹھانے پر آمادہ ہوئے۔ اور کشتی اسی لمحے اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ ہجوم تو جھیل کے پار رہ گیا تھا۔ اگلے دن لوگوں کو پتا چلا کہ شاگرد ایک ہی کشتی لے کر چلے گئے ہیں اور کہ اس وقت عیسیٰ کشتی میں نہیں تھا۔ پھر کچھ کشتیاں تبریاس سے اس مقام کے قریب پہنچی جہاں خداوند عیسیٰ نے روٹی لے کر شکر گزاری کی دعا کر کے اسے لوگوں کو کھلایا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ نہ عیسیٰ اور نہ اس کے شاگرد وہاں ہیں تو وہ کشتیوں پر سوار ہو کر عیسیٰ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کفر نحوم پہنچے۔ جب انہوں نے اسے جھیل کے پار پایا تو پوچھا، استاد آپ کس طرح یہاں پہنچ گئے؟ میں تم کو سچ بتاتا ہوں، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈ رہے کہ الہی نشان دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ تم نے جی بھر کر روٹی کھائی ہے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ ایسی کے لیے جو ابدی زندگی تک قائم رہتی ہے، جو ابن آدم تم کو دے گا، کیونکہ خدا باپ نے اس پر اپنی تصدیق کی مہر لگائی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا مطلوبہ کام کریں؟ اللہ کا کام یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ تو پھر آپ ہمیں کیا الہی نشان دکھائیں گے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ہمارے باپ دادا نے تو ریگستان میں من کھایا، چنانچہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے انہیں آسمان سے روٹی کھلائی۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ خود موسیٰ نے تم کو آسمان سے روٹی نہیں کھلائی، بلکہ میرے باپ نے وہی تم کو آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی روٹی وہ شخص ہے جو آسمان پر سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتا ہے۔ ہمیں یہ روٹی دے، میں ہی زندگی کی روٹی، ہمیں یہ روٹی دے۔ جو میرے پاس آئے اسے پھر بھوک نہیں لگے گی، اور جو مجھ پر ایمان لائے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جس طرح میں تم کو بتا چکا ہوں، تم نے مجھے دیکھا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جتنے بھی باپ نے مجھے دیے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، اور جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے آسمان سے نہیں اترا، بلکہ اس کی جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور جس نے مجھے بھیجا اس کی مرضی یہ ہے کہ جتنے بھی اس نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں ایک کو بھی کھو نہ دوں، بلکہ سب کو قیامت کے دن مردوں میں سے پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہی ہے کہ جو بھی فرزند کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے اسے ابدی زندگی حاصل ہو۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن میں پھر زندہ کروں گا
ये सुनकर यहूदी इसलिए बुड़बुड़ाने लगे कि उसने कहा था, मैं ही वो रोटी हूँ जो आसमान पर से उतर आई है। ये आदमी ईसा है, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है, जिसके बाप और माँ से हम वाकिफ हैं? वो क्यों कर कह सकता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? आपस में मत बुड़बुड़ाओ। सिर्फ वो शख्स मेरे पास आ सकता है जिसे बाप जिसने मुझे भेजा है मेरे पास खींच लाया है। कयामत के दिन में उसे मुर्दों में से फिर जिंदा करूंगा। नबियों की सहीफों में लिखा है, सब अल्लाह से तालीम पाएंगे। जो भी अल्लाह की सुनकर उससे सीखता है वो मेरे पास आ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी ने कभी बाप को देखा, सिर्फ एक ही ने बाप को देखा है, वही जो अल्लाह की तरफ से है। मैं तुमको सच बताता हूं कि जो ईमान रखता है उसे अबदी जिंदगी हासिल है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा रेगिस्तान में मन खाते रहे तो भी वो मर गए, लेकिन यहां आसमान से उतरने वाली ऐसी रोटी है जिसे खाकर इंसान नहीं मरता। मैं ही जिंदगी की वो रोटी हूं जो आसमान से उतर आई है। जो इस रोटी से खाए वो अबद तक जिंदा रहेगा। और ये रोटी मेरा गोश्त है जो मैं दुनिया को जिंदगी मुहैया करने की खातिर पेश करूंगा। यहूदी एक दूसरे से बहस करने लगे। ये आदमी किस तरह हमें अपना गोश्त खिला सकता है? मैं तुमको सच बताता हूं कि सिर्फ इब्ने आदम का गोश्त खाने और उसका खून पीने ही से तुम में जिंदगी होगी। जो मेरा गोश्त खाए और मेरा खून पिए अबदी जिंदगी उसकी है, और मैं उसे कयामत के दिन मुर्दों में से फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी खुराक और मेरा खून हकीकी पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। मैं उस जिंदा बाप की वजह से जिंदा हूं जिसने मुझे भेजा। इसी तरह जो मुझे खाता है वो मेरी ही वजह से जिंदा रहेगा। यही वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। तुम्हारे बाप दादा मंद खाने के बावजूद मर गए, लेकिन जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। ईसा ने ये बातें उस वक्त की जब वो कफरनहूम में यहूदी इबादत खाने में तालीम दे रहा था। ये सुनकर उसके बहुत से शागिर्दों ने कहा, ये बातें नागवार हैं, कौन इन्हें सुन सकता है? ईसा को मालूम था कि मेरे शागिर्द मेरे बारे में बुड़बुड़ा रहे हैं। क्या तुमको इन बातों से ठेस लगी है? तो फिर तुम क्या सोचोगे जब इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था? अल्लाह का रूह ही जिंदा करता है, जबकि जिस्मानी ताकत का कोई फायदा नहीं होता। जो बातें मैंने तुमको बताई हैं वो रूह और जिंदगी हैं। तुम में से कुछ हैं जो ईमान नहीं रखते। ईसा तो शुरू ही से जानता था कि कौन कौन ईमान नहीं रखते और कौन मुझे दुश्मन के हवाले करेगा। इसलिए मैंने तुमको बताया कि सिर्फ वो शख्स मेरे पास आ सकता है जिसे बाप की तरफ से ये तौफीक मिले। उस वक्त से उसके बहुत से शागिर्द उल्टे पांव फिर गए और आइंदा को उसके साथ ना चले। और तुम? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? खुदावंद, हम किसके पास जाएं? अबदी जिंदगी की बातें तो आप ही के पास हैं, और हमने ईमान लाकर जान लिया है कि सिर्फ आप ही अल्लाह के कुदूस हैं।
क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक शैतान है। वो शमाउन अस्करियोती के बेटे यहूदा की तरफ इशारा कर रहा था, जो 12 शागिर्दों में से एक था और जिसने बाद में उसे दुश्मन के हवाले कर दिया। इसके बाद ईसा ने गलील के इलाके में इधर उधर सफर किया। वो यहूदिया में फिरना नहीं चाहता था क्योंकि वहां के यहूदी उसे कत्ल करने का मौका ढूंढ रहे थे। लेकिन जब यहूदी ईद बनाम झोंपड़ियों की ईद करीब आई तो उसके भाइयों ने उससे कहा, ये जगह छोड़कर यहूदिया चला जा, ताकि तेरे पैरोकार भी वो मौजज़े देख लें जो तू करता है। जो शख्स चाहता है कि अवाम उससे जाने, वो पोशीदगी में काम नहीं करता। अगर तू मौजज़ाना काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर। असल में ईसा के भाई भी उस पर ईमान नहीं रखते थे। अभी मेरा मौजू वक्त नहीं आया। तुम्हारे लिए हर वक्त मौजू है। दुनिया तुमसे नहीं, मुझसे दुश्मनी रखती है, क्योंकि मैं गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम खुद ईद पर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा मौजू वक्त नहीं आया। ये कहकर वो गलील में ठहरा रहा। लेकिन बाद में जब उसके भाई ईद पर जा चुके थे तो वो भी गया, अगरचे इलानिया नहीं बल्कि खुफिया तौर पर। यहूदी ईद के मौका पर उसे तलाश कर रहे थे। वो पूछते रहे, वो आदमी कहाँ है? हजूम में से कई लोग ईसा के बारे में बुड़बुड़ा रहे थे। बाज ने कहा वो अच्छा बंदा है, लेकिन दूसरों ने एतराज किया, नहीं, वो अवाम को बहकाता है। लेकिन किसी ने भी उसके बारे में खुलकर बात ना की, क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे। ईद का आधा हिस्सा गुजर चुका था जब ईसा बैतुल मुकद्दस में जाकर तालीम देने लगा। उसे सुनकर यहूदी हैरतज़दा हुए और कहा, ये आदमी किस तरह इतना इल्म रखता है, हालांकि इसने कहीं से भी तालीम हासिल नहीं की। जो तालीम मैं देता हूँ वो मेरी अपनी नहीं बल्कि उसकी है जिसने मुझे भेजा। जो उसकी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार है वो जान लेगा कि मेरी तालीम अल्लाह की तरफ से है या कि मेरी अपनी तरफ से। जो अपनी तरफ से बोलता है वो अपनी ही इज्जत चाहता है। जो अपने भेजने वाले की इज्जत बढ़ाने की कोशिश करता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं है। क्या मूसा ने तुमको शरीयत नहीं दी तो फिर तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम किसी बदरू की गिरफ्त में हो। कौन तुम्हें कत्ल करने की कोशिश कर रहा है? मैंने एक ही मौजज़ा किया और तुम सब हैरतज़दा हुए। तुम मूसा की शरीयत के मुताबिक बच्चों का खतना करवाते हो, अगरचे ये मूसा से नहीं बल्कि हमारे बाप दादा से शुरू हुई। और अगर ये दिन सबत हो तो तुम फिर भी अपने बच्चे का खतना करवाते हो ताकि शरीयत की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। तो फिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो कि मैंने सबत के दिन एक आदमी के पूरे जिस्म को शिफा दी? ज़ाहिरी सूरत पर फैसला ना करो बल्कि बातिनी हालत पर फैसला करो। उस वक्त यरूशलेम के कुछ रहने वाले कहने लगे, क्या ये वो आदमी नहीं है जिसे लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं? ताहम वो यहाँ खुलकर बात कर रहा है और कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। क्या हमारे रहनुमाओं ने हकीकत में जान लिया है कि ये मसीह है? लेकिन जब मसीह आएगा तो किसी को भी मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ से है। ये आदमी फर्क है, हम तो जानते हैं कि ये कहाँ से है। ईसा बैतुल मुकद्दस में तालीम दे रहा था। अब वो पुकार उठा, तुम मुझे जानते हो और ये भी कि मैं कहां से हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं आया। जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है और उसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी तरफ से हूं और उसने मुझे भेजा है। तब उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन कोई भी उसको हाथ ना लगा सका क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया था। तो भी हजूम के कई लोग उस पर ईमान लाए। जब मसीह आएगा तो क्या वो इस आदमी से ज्यादा इलाही निशान दिखाएगा?
फरीसियों ने देखा कि हजूम में इस किस्म की बातें धीमी धीमी आवाज के साथ फैल रही हैं। चुनाचे उन्होंने रहनुमा इमामों के साथ मिलकर बैतुल मुकद्दस के पहरेदार ईसा को गिरफ्तार करने के लिए भेजे। मैं सिर्फ थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर उसके पास वापस चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे मगर नहीं पाओगे, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते।